Hi, hello, welcome to the NanoTeach YouTube channel. So here I am with a new lecture series for class 9 biology. So what we are going to discuss in today's lecture, that is fundamental unit of life. Okay, so this lecture is very important for all of you guys because here we will be discussing a lot of quiz questions, MCQ, homework plus challenger question. But before that we will cover the parts like cell theory, discoveries about cell, types of cell and differentiation between the multicellular and unicellular organisms. So let's begin the lesson soon. But before going to the lesson, if you want to connect with me to make your all doubts clear, then you have to download the Telegram application from the Play Store and type there nanot/telegram, or the link of my group is given in the description box. You can click there and join my Telegram right now. Okay. So guys, let's start this session by the very inspiring thought. And the thought is, it is better to conquer yourself than to win 1,000 of battles. Okay, it is better to conquer yourself. Okay, firstly you have to conquer yourself. अपने आप पे आपको जीतना पड़ेगा. Then to win 1,000 of battle, तब आप सारी दुनिया को जीत सकते हो. यहाँ पे बैटल की बात हुई है, लेकिन आप सारी दुनिया को जीत सकते हैं. लेकिन उससे पहले आपको अपने आप पे कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आप पे विजय पाना पड़ेगा. ठीक ना, तो तभी सारी चीजें आपसे पॉसिबल हो सकती है. तो लिटरली व्हेन आई वाज रीड दिस थॉट, देन आई वाज सो सरप्राइज एंड सो इंस्पायर्ड फ्रॉम दिस थॉट. Therefore I thought that I have to put it on here. Okay, so guys, let's start with the cell theory. So cell, okay, अभी हमने आपसे कहा था we will start with the cell theory, but ये भी cell theory है and who proposed it we will discuss it later. Okay, so read the first point, that is it is a fundamental unit of life. So guys, I hope you guys are listen through your teacher a famous dialogue, that is a house ना, एक घर है, उसकी सबसे बेसिक यूनिट, सबसे फंडामेंटल यूनिट है एक ब्रिक, जो कि ईंट है. ठीक ना, ईंट के बाद जो बहुत सारे ईंट मिलके बनते हैं एक वॉल बनता है. ठीक ना, बहुत सारे जब वॉल बन जाते हैं तो एक रूम बनता है एंड बहुत सारे रूम मिलकर एक अच्छा सा घर बनता है. ठीक ना, एज इन आवर बॉडी हमारी बॉडी में भी ऐसी होती है कि सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारी होती है सेल. ठीक ना, जैसा कि आपकी जो अपने टीचर का डॉक्यूमेंट लगा था वही भी मेरा ही है. ठीक ना, ओके, तो इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है. ठीक, तो वही है मेरा भी डायलॉग. सो गाइस, ऐसे हमारी बॉडी में भी जो सबसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होती है ना, वो होती है सेल. ठीक ना, बहुत सारे जब सेल मिलके बनते हैं तो होता है टिश्यू. बहुत सारे जब टिश्यू कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर वर्क करते हैं तो उनको कहते हैं एक ऑर्गन. बहुत सारे जब ऑर्गन आ जाते हैं तो उनको कहते हैं ऑर्गन सिस्टम. एंड बहुत सारे जब ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी में हैं तो हम एक कहलाएंगे एक ऑर्गेनिज्म. ओके, तो हम एक ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है. ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं. ठीक ना, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. एंड सेकेंड इज, इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ. व्हाई इट इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ? Because we all know that we all are made up of cell. Even not we all the living organisms are made up of cell. Okay, we all know that we are made up of cell, and basically cell give the structure to our body. You can say that it gives the structure to our body. Okay, and it helps to sustain the life on earth. Okay, and third is, it is the smallest unit of all living organisms. Okay, it is the smallest unit of all living organisms. आपको पता ही होगा ना, सबसे छोटी यूनिट होती है. आफ्टर दैट हमारा क्या हुआ कि all the living organisms in this universe are made up of cell. हम सभी लोग जानते हैं कि यूनिवर्स में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं they all are made up of cell. Okay, and fifth point is, they are either exist in single or the combination of multiple cell. Okay, जितने भी यूनिवर्स में ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, वो दो रूप में, दो फॉर्म में पाए जाते हैं. एक तो क्या हो सकता है कि वो खाली सिंगल सेल में प्रेजेंट हो, जो कि होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो यूनिसेलुलर क्या होता है हम आपको बाद में पढ़ाएंगे. ठीक ना, आफ्टर दैट एक दूसरे फॉर्म में होता है जिसको कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. वो क्या होते हैं, मल्टीपल सेल से बने होते हैं. ठीक ना, तो व्हाट इज दिस मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर, वी विल डिस्कस इट लेटर. सो गाइस, अब चलिए चलते हैं कुछ साइंटिस्ट के नाम पढ़ते हैं जो कि सेल की डिस्कवरी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. ठीक ना, नाउ गाइस, अब आपके सामने यहाँ पे दो साइंटिस्ट के नाम दिख रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक ना, तो यहाँ पे बेसिकली दो साइंटिस्ट नहीं, यहाँ पे तीन साइंटिस्ट हैं. कौन है? देखिए, सबसे पहले साइंटिस्ट है यहाँ पे एमजी स्क्लेडन, दूसरे हैं टी स्वैन, एंड थर्ड है, क्या है थर्ड? रॉबर्ट ब्राउन. ठीक ना, अब बात आती है कि एमजी स्क्लेडन एंड टी स्वैन का नाम दोनों का साथ में क्यों ले जाता है?
तो बेसिकली गाइस हमने अभी जो प्रीवियस स्लाइड में जो भी 5 पॉइंट पढ़े थे, ठीक ना, वो किसके द्वारा दिए गए थे? वो दिए गए थे एमजी स्लेटर एंड टी स्वेन द्वारा दिए गए थे। वो क्या थे? वो सेल थियरी थी। वो सारी बातें किसने दी थी? इन्होंने दी थी, ठीक ना। अब इनका साथ में नाम इसलिए आता है कि इन्होंने, देखिए, जो एमजी स्लेटन थे और टी स्वेन थे, इन्होंने अलग अलग, मतलब ये दोनों अलग अलग साइंटिस्ट हैं, ठीक ना। तो जो इन्होंने सेल थ्योरीज ऑफ पॉइंट दी थी और जो इन्होंने दी थी सेल थ्योरीज ऑफ पॉइंट, वो मैक्सिमम क्या कर रहे थे? दोनों के थोड़े थोड़े मैचिंग कर रहे थे, ठीक ना। इसीलिए जब भी हम सेल थ्योरी का नाम लेते हैं तो एमजी स्लेटन एंड टी स्वेन का नाम साथ में आता है। अब आते हैं रॉबर्ट ब्राउन पे। रॉबर्ट ब्राउन कौन थे? बेसिकली ही वाज अ पर्सन हु डिस्कवर्ड द सेल। इन्होंने, ये वही पर्सन है जिन्होंने सबसे पहले सेल की डिस्कवरी की थी। बट सेल की डिस्कवरी तो हुई थी, सेल की डिस्कवरी तो हुई थी, बट डेड सेल की हुई थी, मरे हुए सेल की डिस्कवरी हुई थी। बेसिकली ही वाज ऑब्जर्विंग द स्लाइस ऑफ वुडन कॉर्प through his self-made microscope, and while observing what he found the small vacant room-like structure, and it was looking like a honeycomb structure, ठीक ना। तो honeycomb जैसा जो hexagonal स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ ऐसा कुछ, ठीक ना, ऐसा कुछ दिख रहा था, ऐसा, ठीक ना, समझ गए। तो ऐसा कुछ वो क्या वैकेंट रूम दिख रहा था। तो क्या था एक्चुअली, क्या था? वो वैकेंट था, ठीक ना। वैकेंट इसलिए था क्योंकि वो डाइड था। इसके अंदर के जो भी सेल ऑर्गेनिज्म थे, जो भी इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनिज्म थे, वो क्या होते? वो फिनिश हो गए, पूरे वैनिश हो गए थे इसके अंदर के, क्योंकि वो डेड सेल थे। ओके, ये थे दो साइंटिस्ट जो कि इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था डिस्कवरी ऑफ सेल की, ठीक ना। और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जो कि अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक। ऐसा अब हम पहुंच गए हैं द अदर डिस्कवरीज अबाउट सेल। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं द रॉबर्ट ब्राउन, ठीक ना। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया था? न्यूक्लियस ऑफ द सेल का डिस्कवरी की थी, ठीक है। न्यूक्लियस ऑफ द सेल इन 1831। न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल। जो पूरे मतलब सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उसको मतलब क्या करता है कि मतलब उसको डिसीजन देता है कि तुम ये करो, वो करो, वो करो, मतलब सारी चीजें परफेक्ट होनी चाहिए। ये सारा मतलब नॉलेज इसके अंदर होता है। इसके अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। इसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इसको हिंदी में हम कहते हैं केंद्रिका। अब आते हैं हमारे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक कौन है? अब देखिए, हमने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा था कि जो रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, लेकिन जो यहाँ पे एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक है, इन्होंने फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। लिविंग सेल, जीते जागते सेल की डिस्कवरी की थी, और वो क्या था? बैक्टीरिया था। बेसिकली ही वाज ऑब्जर्विंग द पॉन्ड वाटर इन अ समथिंग बेटर माइक्रोस्कोप देन द रॉबर्ट ब्राउन। ओके, तो इन्होंने बैक्टीरिया का खोज किया था किसमें? कौन से सन में? 1674 में, ठीक है ना। ये लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक। आफ्टर दैट पुरकिंजे आते हैं। इन्होंने क्या किया था? द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। फ्लूइड सब्सटेंस, फ्लूइड मतलब तैरता हुआ सब्सटेंस, मतलब ऐसा फ्लूइड लिक्विड सब्सटेंस, ठीक ना, जो कि सेल के अंदर होता है। उसी से सारे सेल अपने मतलब एक ही जगह पर पड़े रहते हैं, इधर उधर तैरते किसकी वजह से है? फ्लूइड सब्सटेंस। उसको क्या कहते हैं हम? प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक ना। अभी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में इसको जानेंगे, ठीक ना। तो कब किए थे इन्होंने? 1839 में, याद रहेगा ना। 1839 में इन्होंने प्रोटोप्लाज्म का खोज किया था। किसने किया था? पुरकिंजे। आफ्टर दैट हमारे आते हैं फोर्थ नंबर पे जे.ई. वर्काउ। इन्हें बहुत लोग क्या कहते हैं? विर्चो भी बोलते हैं, बहुत लोग वर्काउ भी बोलते हैं, आप चाहे जो बोले, ठीक ना। तो इन्होंने क्या किया था? एक्सपेंडेड द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया था, ठीक ना। सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया था। पिछले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था? पिछले स्लाइड में दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एमजी स्लेटन एंड टी स्वेन। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो थी उसको अपने सेल थ्योरी में ऐड नहीं किया था। वो उस समय वो नहीं जानते थे कि जो सेल तो है, ये सब सारी चीजों को बारे बता दिए थे, लेकिन सेल कहाँ से आते हैं, सबसे पहले मतलब वो कहाँ से निकलते हैं, मतलब उनकी जन्म कहाँ से होता है, वो नए सेल कहाँ से बनते हैं, ये नहीं पता थी। और ये जो बात नहीं पता थी वो इसलिए सेल थ्योरी में नहीं प्रेजेंट थी, ठीक ना। तो जब जे.ई. वर्काउ हुआ, इन्होंने सेल थ्योरी को और एक्सपैंड किया और इन्होंने बताया कि जो सेल होते हैं वो पुराने वाले सेल से डिवाइड होकर बनते हैं। जैसा कि मान लीजिए एक सेल है, जब ये मतलब जो डिवाइड होने का होगा, ठीक ना, तो ये एक सेल से दो सेल में डिवाइड होके बन जाएगा, ठीक ना। जो छोटे छोटे सेल में डिवाइड होके बन जाएगा, ठीक। तो एक सेल क्या होता है, जब डिवाइड होता है तो दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। तो इसी से नए नए सेल जैसे बढ़ते जाते हैं और हमारी बॉडी ग्रोथ करती जाती है, ठीक ना। तो यही कारण है। तो ये इसका खोज कब हुआ था? तो 1855 में। ऑल लिविंग
ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल मतलब जो कि पहले से प्रेजेंट है, उनसे सेल से क्या होते हैं, नए नए सेल बनते हैं। ओके, बेसिकली ही सजेस्टेड दैट सेल कम फ्रॉम द सेल विच इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन नेचर। ओके, चलिए अब याद रहेगा आपको। अब आते हैं हम अपने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसे डिवाइस है जो कि सेल के अंदर के जितने भी सारे मतलब वो ऑर्गेनेल्स हैं उसको सारी चीजों को एकदम एचडी फिगर से विजिबल करने के लिए हमारा हेल्प किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक ना। इसके डिस्कवर कौन थी अभी तो नहीं पता, लेकिन ग्रुप में हुआ होगा, ठीक है। इसका लेकिन जब डिस्कवरी हुई थी तो 1940 का समय था, ठीक है। 1940 ईयर में इसकी डिस्कवरी हुई थी। आफ्टर दैट कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इसको कैसे भूल जाए क्योंकि सभी स्कूल कॉलेजेस में इसी का यूज होता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डिस्कवरी कौन किए थे, हैंस एंड जेकेरियास, ठीक है। यहाँ पर भी दो साइंटिस्ट नाम है, ठीक है। तो इनको हम खाली हैंस और जेकेरियास बोलते हैं। तो ये लिस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, ठीक। ओके गाइस, अगर आपको ये वीडियो भी अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरा तहे दिल से रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज दिस टाइप ऑफ कंटेंट यू विल नेवर गेट इन एंड द यूट्यूब चैनल। लेकिन इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को जहां तक आप शेयर कर सके वहां तक आपको शेयर कर सके, ठीक ना, शेयर कर दीजिए। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो गाइस ये थे कुछ साइंटिस्ट जिनका डिस्कवरी ऑफ सेल में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा, ठीक ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहा, जो कि आपको इनको याद कर लेना ही चाहिए क्योंकि जब भी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर आएगा तब ये सब क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रैंकिंग पोजीशन में होंगे, ठीक ना, तो आपको याद कर लेने चाहिए। तो गाइस इन्होंने क्या किया था, अपने अपने इंस्ट्रूमेंट से अपने खोज की थी। तो इवन वी कैन ऑब्जर्व सेल, हाउ वी कैन ऑब्जर्व सेल, we have to take firstly a peel of onion and put it on the solution containing stain। okay, solution containing stain में आपको क्या रखना होगा, उसका जो पील होता है ना, ओनियन का पील, उसको रखना होगा, ठीक ना। आप उसको स्टेन कर लीजिए। तो आफ्टर दैट पुट इट ऑन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व इट। आपको तब कैसा दिखाई देगा, आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ठीक ना। तो आप ऐसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू आप किसी भी सेल को देख सकते हैं, ठीक। ओके, टाइप्स ऑफ सेल देखिए दो टाइप के होते हैं सेल, ठीक ना। तो सबसे पहला जो होता है एक होता है यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। यूनिसेलुलर क्या होता है, द ऑर्गेनिजम्स दैट मेड अप ऑफ सिंगल सेल एंड मे कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिजम्स आर नेम्ड एज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल, एक ही सेल से बना हो और एक वो पूरी बॉडी कहलाती है, पूरी एक ऑर्गेनल कहलाती हो, ऑर्गेनिज्म कहलाती हो, वो क्या होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि एक बैक्टीरिया क्या होता है, सिंगल सेल होता है, और वो बैक्टीरिया क्या है, वो एक खुद सा एक ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म बन जाता है। लेकिन हम लोग क्या होते हैं, हम लोग इतने सारे सेल भरे हैं तब जाके हम क्या एक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। लेकिन बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक है, ठीक ना, तो वो एक पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म है, खाली एक सिंगल सेल से। सोचिए, तो और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं जैसे यूग्लिना, अमीबा, उसके बाद पैरामीशियम बैक्टीरिया, ठीक ना। तो ये सब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सिंगल सेल से बने हुए हैं, ठीक। आफ्टर दैट देखिए सिंगल सेल में बने होते हैं तो इनके अंदर सारी प्रोसेस होती है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, सारी चीजें होती हैं इनके अंदर, ठीक। इसीलिए इनको कहा गया एक होल ऑर्गेनिज्म ना, एक होल ऑर्गेनिज्म एक बन जाते हैं खाली एक सेल से। आफ्टर दैट है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर क्या होते हैं, द ऑर्गेनिज्म व्हिच कंटेन द वेरियस सेल्स दैट परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस एंड द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वैसे ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, वो जो बहुत सारे सेल्स होते हैं वो अलग अलग फंक्शंस को करते हैं, उनको कहते हैं क्या, उनको कहते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक ना। यहाँ पे बहुत सारे सेल अलग अलग कामों को भी करते हैं, उसको कहते हैं लेबर डिवीजन। लेबर डिवीजन क्या होता है हमने अभी बताया था, उसको हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक ना। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे सेल होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत सारे टाइप के सेल पाए जाते हैं, ब्रेन सेल, हार्ट सेल, आफ्टर दैट कलरफुल सेल व्हिच इज इन आवर आईज, आफ्टर दैट ब्लड सेल्स, उसके बाद बहुत सारे सेल्स होते हैं, उनके अलग अलग काम होते हैं, ठीक है। दे आर स्पेशलाइज्ड टू वर्क दैट। तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के एग्जांपल है एनिमल, इंसेक्ट, ह्यूमन, प्लांट फॉर्म एंड मॉसेस। सो दिस वाज द मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो गाइस आई होप आपको ये सॉलिड क्लियर हो गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को तुरंत शेयर कर दीजिए।
चलिए गाइस, अब हम देखते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन द मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ओके, नाउ गाइस, अब हम पहुंच गए हैं द डिफरेंशिएशन बिटवीन द मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक ना, डिफरेंशिएशन बिटवीन द मल्टीसेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। चलिए देखिए, मल्टीसेलुलर में सबसे पहले क्या डिफिनेशन पढ़ते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर ऑर्गेनिजम्स which are composed of more than one cell। एक सेल से ज्यादा सेल के जो बने होते हैं उनको मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, ये आप जान चुके हैं। आफ्टर दैट इसका डेफिनेशन देखते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली वन सेल, एक सेल से बने होते हैं, ये भी आप जानते हैं। आफ्टर दैट ओरिजिन देखते हैं, ये कब से आए हुए हैं। दे हैव इवॉल्व फ्रॉम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से, क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बन के आएंगे। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थोड़ी ओल्ड मॉडल के सेल है, बट इनसे थोड़े से मतलब थोड़ा सा एडवांस सेल बन गया है। क्या इसमें ये बन गया है, मतलब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर से ही आया है, ठीक ना, यूनिसेलुलर से ही मल्टीसेलुलर बना है, इसीलिए यहाँ पे लिखा है दे आर इन्वॉल्व फ्रॉम द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। 1.2 मिलियन ईयर एगो, 1.2 मिलियन ईयर एगो के बाद से ये मतलब बना हुआ है, ठीक ना, आया हुआ है। कौन सा, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आफ्टर दैट इसका हम देखते हैं ओरिजिन। दे हैव इन्वॉल्व अर्लियर अराउंड आफ्टर दैट हम इसका ओरिजिन देखते हैं। दे हैव इन्वॉल्व अर्लियर अराउंड 3.5 थाउजेंड मिलियन ईयर एगो। ये जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ये क्या है, 3.5 मिलियन ईयर एगो के पहले से आया हुआ है, ठीक ना, बात समझ गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिस्ट है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का सेल साइज देखते हैं। यहाँ पे इसका सेल साइज क्या होता है, 10 to 100 माइक्रोमीटर, और इसका यूनिसेलुलर क्या होता है, 5 to 100 मिलियन, आई मीन 5 to 100 माइक्रोमीटर, ठीक ना, बात समझ में आई। आफ्टर दैट अब यहाँ पे है नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं इसमें, मोर देन वन सेल होते हैं, ठीक ना, इसमें क्या होते हैं, ओनली वन सेल होते हैं। एबिलिटी क्या होती है, दे आर नॉट एबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को वे फिक्स नहीं कर पाते। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाए जाते हैं, उसको फिक्स करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज होते हैं। तो बैक्टीरिया क्या होते हैं, बैक्टीरिया मतलब एक सेल मतलब किससे बना होता है, एक सेल मतलब एक ही सेल से बना होता है, वो क्या होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ये है, तो इसमें जितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं, इसमें से कुछ है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक ना। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर एबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। बात समझ में आई। चलिए, अब आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं सम एमसीक्यू। After that, do not forget to take your homework after entry of the class. Okay? तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ MCQ questions. Now guys, we reach to the MCQ. MCQ में सबसे पहला क्वेश्चन है which of the following are not the multicellular organisms. इसमें बताइए कौन सा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है। तो उसमें ह्यूमन है, इंसेक्ट है, एंड चींटियां है, यूग्लिया नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, टिक हो जाएगा, ठीक है, इसमें ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेकंड है चूज द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द सेल। सेल को डिस्कवर कौन किया था, उसको हमें टिक करना है। तो रॉबर्ट ब्राउन है, या रॉबर्ट हुक है, या रॉबर्ट यहाँ पे हैंस ज़ेकेरियास है, या लीवेनहॉक है। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी की थी। आफ्टर दैट हैंस ज़ेकेरियास ने क्या किया था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप किया था। लीवेनहॉक ने क्या किया था, लिविंग सेल का डिस्कवर किया था, ठीक ना। आफ्टर दैट अब थर्ड हमारा है प्रोकेरिया डिस्कवर्ड द प्रोटोप्लाज्म इन विच ईयर। तो ये प्रोकेरिया ने किस ईयर में प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरी की थी। तो 1839, 1831, 1674। इसमें तीन ही ऑप्शन मैंने आपको दिए हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्या है, 1839। आप इसको नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब आपके सामने यहाँ पे दो चैलेंजिंग क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। आप इसको यहाँ पे पढ़ लीजिए। वो कौन कौन से क्वेश्चन है, वो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन है राइट टू फेमस डिस्कवरीज ऑफ रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन के दो और मतलब जो डिस्कवरी किए थे, मतलब दो डिस्कवरी की हुई थी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ना, वो कौन कौन सी थी, उनके बारे में आपको कमेंट में लिखना है, ठीक ना। कमेंट बॉक्स इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में आप तुरंत लिखिए सर्च करके। आफ्टर दैट सेकंड है
हु रोट अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफी। माइक्रोग्राफी नामक एक बुक थी, उसको किसने लिखा था, आपको ये सर्च करके हमारे कमेंट बॉक्स पे लिखना है और जल्दी से आपका आंसर आ जाना चाहिए। इसी वीडियो को तुरंत पॉज करके इसका आंसर दे दीजिए, ठीक ना। ये आपका है होमवर्क। ओके, तो चलिए गाइस, आई होप गाइस ये मेरी मेहनत से आपको बहुत ही ज्यादा सीखने को कुछ मिला होगा। तो अगर आपको थोड़ा बहुत अगर मिला भी होगा, बहुत अच्छा फायदा हुआ होगा, तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड इफ यू वांट टू शेयर दिस वीडियो देन प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल फ्रेंड्स इन ऑल द ग्रुप्स। ओके, and do not forget to like to this video. Okay guys, so guys we will meet to end the next video. Till then please take care of you by the COVID-19. Okay, so जय हिंद जय भारत।